अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर आपके शहर में और मैं हूं अहमद शाहीन। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ओल्डहम में और यहाँ यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में। यहाँ इस वक्त UKIM का जो कन्वेंशन है वो जारी है। इस कन्वेंशन के क्या अगराज़ व मकासद हैं, कौन लोग यहाँ पर मदऊ हैं और इस कन्वेंशन के ज़रिए से UK इस्लामिक मिशन क्या अचीव करना चाह रहा है, इसको हम देखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम ये सारी जो एक्टिविटी है इसको कवर भी करेंगे और यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ लोगों से, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से, इनसे बात भी करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम में। Respected elders, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would like to extend a warm welcome to all of you and thank you for joining us for the UKIM's annual Workers' Convention 2016 with the theme Building a Better Britain Together. We have a packed day ahead of us and I'm very excited about it with various speakers of various specialities. It's great to see so many people here today that have travelled far and wide to be with us. And I ask that Allah bless you all for your commitment. I'd like to, first of all, call Qari Jahangir Badr, who is the UKIM Youth Vice President, to recite some verses from the Holy Quran and give us a short reminder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح। नाज़रीन, डॉक्टर अनस अल तकरीती हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया, यहाँ पे उन्होंने खिताब भी किया। इनसे हम पूछेंगे इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनस। Alaikum assalam, it's a pleasure. Thank you very much for having me. जज़ाकल्लाह। Can you tell me about the significance of this event? The attendance, I think it shows the importance of this particular conference. The fact that there are, mashallah, hundreds, possibly even thousands of brothers and sisters, young and old, and from all sections of the community, I think it shows how important these gatherings are. And the importance of this is in terms of the time, as well as also in terms of the themes being discussed. And I think that is incredibly important. The challenge that we face today and what we've been discussing throughout the day and which we will continue to discuss throughout the rest of the day, I think that they show exactly the level of importance that the Muslim community realizes that its role is for not only itself, but for the sake of the country as a whole. Well, it's always been a very positive contribution. Unfortunately, we haven't been good enough in communicating the successes of ourselves, the positive contributions of the Muslim community over a century long towards the country and its prosperity. And I think that that's something that we need to work harder on. But on every other level, we have been part of building this country, of making it what it is today. And it's vital that we also correct the country in how it's going wrong, in terms of dealing with the foreign policy, in terms of the lack of morality, in terms of the lack of justice and the such. We have a role to play in correcting the way in which it's heading. नाज़रीन, हमारे साथ शबीर हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि UKIM रिलीफ में खासे एक्टिव हैं। ख़ास तौर पे जंगों के नतीजे में जो बच्चे ज़ख्मी होते हैं या उससे मुतासिर होते हैं, उनके लिए बहुत सा ये काम कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये UKIM इस हवाले से क्या काम कर रही है और उसको ये किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। UKIM 1989 से ये काम इसलिए हमने शुरू किया है कि बच्चे जो हैं जहाँ भी हैं, वॉर विक्टिम हैं, जहाँ भी वॉर वुंडेड हैं, ये कभी जंग का हिस्सा नहीं हुआ करते। बच्चों को पता नहीं होता कि हमारे ये जो लिम्स उड़ गए हैं, बम से उड़ गए, हमारे साथ ये क्यों हुआ है। और हम इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये करते हैं कि इन बच्चों के दोबारा इनको टांगों पे खड़ा किया जाए। अगर जले हुए हैं तो प्लास्टिक सर्जरी कराई जाए, अगर हाथ टूटे हुए हैं तो उनको दोबारा एक्टिवेट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि बच्चे के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है और उसको अपाज होने से बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 से ज़्यादा बच्चों का हम इलाज करा चुके हैं और उसमें 99% सक्सेसफुल केस हैं जिनके बारे में ये सोचा जाता था कि कभी ये चल नहीं सकेंगे और वो यहाँ से दौड़ते भागते वापस जाते हैं। और UK इस्लामिक मिशन किसी रिलीफ जो है किसी तारुफ की बता दी। UK इस्लामिक मिशन
हम 1962 से अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया के तूल अर्ज़ में काम कर रहे हैं। हमारी ब्रांचेस 45 से ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई मुसीबत आती है इंसानों के ऊपर तो यूके इस्लामिक मिशन की टीम वहाँ पर फ़ौरन पहुँचती है और वहाँ के लिए इमदाद जमा करती है। और ये हमारी जो ब्रांचेस हैं, जो यूके इस्लामिक मिशन के मेंबर्स हैं, ब्रांचेस हैं, ये उनके लिए फ़ंड्स जमा करते हैं, उनके लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं और हम उस डोनेशन को पूरी अमानत के साथ, ईमानदारी के साथ उन मज़लूम मुसलमानों तक, मज़लूम इंसानों तक पहुँचाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं इस स्टॉल के ऊपर। इस वक्त हम जो जैसे कि मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे मुसलमान ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पे लोग साल हर साल उनको इस बात मैसर नहीं आती कि वो गोश्त वगैरह कुछ खा सकें, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि गोश्त कितना महंगा होता है। उनको तो दो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर हमें जो फीडबैक भी मिलते हैं उसमें पता चलता है कि वो लोग साल में एक दफ़ा जब हमारा जो कुर्बानी का जो गोश्त हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं उनको मिलता है, उस वक्त वो साल में एक मरतबा गोश्त वगैरह वो खाते हैं। इन हॉपकिंस हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के चीफ कांस्टेबल हैं। Well, I think there's three things that are challenges that face the Muslim community here in Greater Manchester. The first is that there are a minority of people that are intolerant and ignorant to both understanding Islam, the Muslim faith, and that's leading to some serious issues around hate crime and the reporting of hate incidents. There's around about 17 hate incidents reported to Greater Manchester Police a day, so that's about 6,500 people a year are abused by a very small minority, and that is not right. I think the second thing is that terrorists have hijacked the name of Islam and are using that very much to create fear within the community. And that also is leading to some of that ignorance and intolerance from a small minority in the wider community. And I think that we have to create a different narrative to that of Daesh and explain more about the great work that Muslims here in Greater Manchester and in the UK do, both in terms of the economic generation that they provide for the country, but also the wonderful work that they do around charitable giving and things like that. हमारे साथ सिस्टर अमीना इस वक्त मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister, tell me about this activity, about involvement of Muslim women in community, please. Well, this activity run by UKIM, it's the annual conference, and I'm here as a speaker, speaking about the importance of building Britain and building Muslims and Islam in Britain and change. Well, it's the thing is, because Muslim women are essentially the visual piece of Islam. Okay, so because a Muslim woman wears the hijab, a non-Muslim will look at her and see this is Islam. So it's so important for Muslim women to understand that we, maybe more than the brothers, are an ambassador for our religion, an ambassador for Islam. And so it's a big responsibility on us and to give that beautiful message of Islam through the way we act and we speak. But also it's important for brothers to empower sisters, husbands to empower wives, fathers to empower daughters, to make sure that we are bringing up the next generation as these effective Muslims in a non-Muslim society. अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ इमरान मौजूद हैं जो कि UKIM यूथ के यहाँ पे तरबिया इंचार्ज हैं। इनसे पूछेंगे कि UKIM यूथ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। UKIM यूथ एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, हम तकरीबन पिछले 8 साल से इस्टेब्लिश्ड हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। हमारा तरबिया के लिहाज से मेरा रोल UKIM यूथ में ये है कि हम डिफरेंट ब्रांचेस में हम जाते हैं, वहाँ पे यूथ को मोटिवेट करते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको डिफरेंट कैंप्स में इन्वॉल्व करते हैं और बेसिकली उनको एक अच्छे सिटीजन्स बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नसरीन बाजी जो कि UKIM सिस्टर्स की हेड हैं, इंचार्ज हैं, जो UKIM का वीमेन विंग है। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा एनुअल कन्वेंशन है वर्कर्स का और इसका मेन मौजू है टुवर्ड्स मेकिंग ब्रिटेन स्ट्रॉन्गर। और इसके ताल्लुक़ से हम जो है ये बताना चाहते हैं कि बरतानिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है वो जितना मर्द अपना हिस्सा डाल रहे हैं उससे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें छोटे बच्चे भी हैं, एल्डरली वुमेन भी है, हमारी काफ़ी यूथ आई हुई है। और ये नहीं कि एक जगह से है, यहाँ पे ओल्डहम से ही नहीं है बल्कि पूरे UK के मुख्तलिफ़ किनारे से जो है हमारे पास सिस्टर्स आई है। और ये दैट शोज़ कि
that they are interested in making Britain stronger. तो मुझे लगता है कि ये आज का जो हमारा इवेंट है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि मुसलमान और औरत जो है वो बहुत ज़ोर शोर के साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस मुल्क को जो है वो मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे UKIM दावा सेंटर का भी स्टॉल लगा है, नहायत कलरफुल स्टॉल है। इसका मुकम्मल इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जब बताइएगा जो UKIM का दावा सेंटर है इसका क्या अगराज़ व मकासद है? अगराज़ व मकासद तो ये थे बेसिकली कि हमने कोशिश की कि यहाँ की कम्युनिटी के अंदर इस्लाम की अवेयरनेस पैदा की जाए, कंसम्पशन मिसकंसम्पशन जो इनके दरमियान पाया जाता है इस्लाम के बारे में उसको दूर किया जाए। 1993 में हमने ये काफ़ी शुरू की। हमारा मकसद ये था कि इस मुल्क के अंदर हम इसको इस दीन की जो मतलब मिसकंसम्पशन है इनको दूर किया जाए, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ा कि पूरी दुनिया में छा गया। इस वक्त हमारा लिटरेचर कम से कम 50 मुल्कों में जा रहा है। अच्छा कैसर साहब, आपसे ही हम पूछना चाहेंगे कि ये जो ब्रेल कुरान है माशाल्लाह UKIM का एक नहायत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो किसी को इसकी तलब हो, कोई इसको लेना चाहता हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है? हाँ, ये बहुत आसान तरीका है। हमारी वेबसाइट है learnislamforfree.com नंबर 4 learnislam4forfree.com। ये यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाएं, उसमें सारी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है ना, किसी को अगर ये ब्रेल कुरान चाहिए वो हमसे रब्ता कायम कर लें। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ गालबन गिफ्ट पैक्स हैं या ये नहायत खूबसूरत कलरफुल गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये पूछेंगे हम कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताइएगा कि ये क्या है इन पैक्स में? इस पैक में कुरान पाक है, 2 अंडरस्टैंडिंग इस्लाम बुक्स हैं और 3-4 और किताबें हैं इसके अंदर। तो और ये किस बारे में रखी गई है? क्या आप इसको सेल कर रहे हैं या क्या करते हैं? हम ये फ्री दे रहे हैं बेसिकली। इंशाल्लाह हमारा स्टोर लगता है जो बर्मिंघम सिटी सेंटर में, तो नन मुस्लिम्स को हमें गिफ्ट पैक दे रहे हैं। अच्छा बताइएगा, अमूमन जब आप ये स्टॉल लगाते हैं तो लोगों का जो हमारे नो मुस्लिम हमारे गैर मुस्लिम हजरात जो रहते हैं उनका किस तरह का रिस्पॉन्स होता है जब आप उनको ये चीज़ें देते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। कहीं ऐसे भी होते हैं कि जो वेट कर होते हैं कि हम कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, मगर किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि जो हम मैस भी जो देते हैं, स्टॉल लगाते हैं ओपन, तो लोग बहुत खुशी से आकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक हम लड़का ये या मूसा ट्रेवर था, तो कैंसर से बेचारा सफ़र हो रहा था, अभी इसने रिकवर किया है, इसके पास डिग्री भी है क्रिश्चियनिटी में। तो 2 हफ्ते पहले हमारे से ये मुसलमान हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कम से कम 900 लोग मुसलमान हुए हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। Assalamu alaikum. Assalam. Okay, alhamdulillah you are a Muslim now. So how do you feel? Completely and utterly transformed my life. It's been from start to finish an experience that I would never forgo. And for anybody that hasn't experienced this, I would ask the question why? Because there's nothing scary, there's nothing frightening, and the Quran is an amazing book. यहाँ पर इस वक्त और भी कुछ स्टॉल्स मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ अफराद वो अपने काविशों को लेके यहाँ पर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर साहब एक प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस की है। यहाँ पे स्टॉल इन्होंने इस वक्त लगाया हुआ है, मुख्तलिफ CDs भी रखी हैं। इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। सर बताइएगा, ये जो आपकी फ़ीचर फ़िल्म थी, जो आपकी ये फ़िल्म, इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये क्या है? ये मेरा बिलीफ है कि इस्लामिक मैसेजेस थ्रू द फिल्म्स भी आने चाहिए, ड्रामों के थ्रू आने चाहिए। जो फिल्म मैंने बनाई है वो दादा पोता की दोस्ती की है। वो दादा हेल्प करते हैं पोते को स्कूल के काम के, उसका स्कूल के इस्लामिक क्विज़ होता है, तो इस फिल्म में हमने काफ़ी इस्लामिक लेसन्स दिए हैं जो दादा टीच करता है पोते को इस्लाम के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त हमें जो भी इस वक्त ड्रामों में नज़र आ रहा है इस्लाम के बारे में वो टेररिज्म है, लेकिन जो असल टीचिंग है लव ऑफ इस्लाम वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामों में इस चीज़ की ज़रूरत है कि असल इस्लाम के बारे में बताया जाए। अच्छा, यहाँ पे साजिदा हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टॉल पे जहाँ पे इनकी किताब पड़ी है तेरे नाम तेरी पहचान। इनसे इस किताब के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने इस किताब को क्यों तहरीर किया और इसके अंदर क्या है। जी साजिदा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किताब जो इस वक्त आपके सामने है, तेरे नाम तेरी पहचान, बहुत अभी 1 महीना पहले पब्लिश होके आई है। यह किताब दरअसल अस्माउल्लाहिल हुस्ना के हवाले से है और इस किताब में मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ नामों की ऐसी तशरीह पेश की है कि जो इससे पहले मेरे ख़्याल में उर्दू लिटरेचर में मौजूद नहीं थी।
और इसमें सारे नाम तो नहीं आ सके, लेकिन मुझे बहुत बचपन से शौक़ था इस बात का कि मैं अस्माउल्लाहिल हुस्ना के बारे में जानूं और इस तरीके से जानूं कि जैसे बहुत गहराई के साथ, इसका ताल्लुक़ सिर्फ पढ़ने के साथ नहीं है कि चंद दफ़ा इसको पढ़ लिया या उंगलियों पे गिन लिया, बल्कि हम किस तरीके से अल्लाह के नाम के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। और असल में इसका मौजू भी, थीम भी यही थी कि बिस्मिका नहया, कि अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ कैसे ज़िंदा रहूं और कैसे ज़िंदा रह सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब थोड़ा अरबिक ज़ुबान से वाक़फ़ियत हासिल हुई, मैंने अरबिक लिटरेचर को पढ़ा, तो मेरी तो ज़हनी कैफ़ियत बदल गई और मुझे महसूस हुआ कि ये तो एकदम मुख्तलिफ़ चीज़ है जो समझने की है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात के ज़रिए से उसको जानने की, उसके करीब जाने की, उसकी मोहब्बत को पाने की और उसको उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की है। तो ये ख्याल था दरअसल इस किताब को लिखने का, अल्हम्दुलिल्लाह। So we have Tony Lloyd with us. He is a police commissioner and mayor of Greater Manchester. Well, this is a great event. Look, anything that says to people from our different communities that Britain is a place of tolerance, a place of peace, is got to be the right message. This is very much the message of UKIM. I know UKIM over the years. I know what they want to do to build a better Britain. We've got to change some things because at the moment being a Muslim in the world is I know is difficult. The world's media, when people are criminals, or terrorists if you like, the temptation is to use the easy language, Muslim terrorist. In actual fact, there is no such thing as a Muslim terrorist. There are terrorists who may use the name of Islam, pervert the name of Islam, but they're not Muslim terrorists any more than they're a Christian terrorist, any more than whatever. हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि UKIM के नायब सदर हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। सर आप ये बताइएगा जो UKIM ने आज का ये इवेंट किया, हमने देखा कि बहुत से लोग आए थे यहाँ पे, फैमिलीज भी थी, तो इससे क्या अचीव हम लोग क्या आप लोग अचीव करना चाह रहे हैं? असल में हमारे चैलेंजेस आ रहे इस मुल्क में बहुत ग्रेट है, उन चैलेंजेस को रियलाइज़ करना, उस पर अमल दरामद करना, ये हमारी फ्यूचर की जो नीड है। उस सिलसिले में सबको UK इस्लामिक मिशन ने एक नहायत अच्छा मौजू रखा, तो उसमें ये बताया गया कि हम आइंदा आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी स्पीकर आए हैं, हमारे अमेरिका से आए हुए मेहमान नईम बेग साहब, सब ने इस बात पे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह अमेरिका में अपने मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के साथ डायलॉग करके इस्लाम को उजागर करते हैं। हमारी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम कम्युनिटी में इंटीग्रेट करके इस्लाम की जो खूबियाँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस्लाम से लोग मुतासर हो और हमारे लिए इस मुल्क में रहना आसान हो। अच्छा, सिस्टर आयशा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि UKIM सिस्टर्स यूथ की इंचार्ज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि जो हमारी सिस्टर्स हैं वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं मस्जिदों में। They are very active in their circles. They're very active in the events that they hold for their youth that attend. For example, we have days out, we have summer camps, we have winter camps, we have iftars, community iftars, which are run by the youth. We have lots of charity events that we hold as well, cake sales and just brick and brack sales as well. Alhamdulillah, I think a few years ago or a while ago, the masjids were not that active with the sisters, but the youth are starting to come back in because they want to find some sense of belonging in the community. And Alhamdulillah, हमारी मस्जिदें, they are offering all of these activities to them. UK इस्लामिक मिशन ख़वातीन के लिए इस वक्त बड़ी मौसर एक तंजीम है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी हेक्टिक दौर है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ऊपर उनका ज़िंदा रहना भी एक मुश्किल काम हो गया है। इस दौर में UK इस्लामिक मिशन ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म फ़राहम करता है जहाँ पर वो मिल के बैठती हैं, ओपन अप होती हैं, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग होती है और हम एक इंसानियत का जो पैगाम है ना वो लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं। ना सिर्फ इंसानियत का पैगाम बल्कि भाईचारे का, मोहब्बत, अमन और सलामती का पैगाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ महमूद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि UKIM मालियात के ज़िम्मेदार हैं और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके भी रुकन हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर भाई। अच्छा महमूद साहब, बताइएगा ये जो आज का कन्वेंशन UKIM ने मुनक्किद किया है, किस तरह से इसको देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चल रहा है आगे की तरफ, तो क्या इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस कन्वेंशन के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अपनी कम्युनिटी है, ख़ासकर मुसलमान और जो गैर मुसलमान हैं, उनको एक अवेयरनेस पैदा करने की यूके इस्लाम मिशन क्या कर रहा है इस मुल्क में और हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और हम किस तरह अपनी कम्युनिटी को इंटीग्रेट करके लोगों तक इस पैगाम को पहुँचा सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा कि प्रोग्राम में खासी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो ये फैमिलीज़ के साथ आने का, बच्चों के साथ आने का, इसके पीछे क्या सोच है? यही सोच है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, इनको सही इस्लाम की अवेयरनेस पैदा की जाए, दीन की मालूमात इन तक पहुँचाई जाएँ और इनको आगे जो हमारी जनरेशन है, इसको इस काम के लिए तैयार किया जाए ताकि ये यहाँ की लीडरशिप के वो हक़ अदा कर सकें जो हमारे मकासद है। जब से मैं इन्वॉल्व हुई मुझे ऐसा लगा है कि जो हमारे साथ स्टिग्मा इन्वॉल्व था कि यंग लेडीज़, मुस्लिम लेडीज़ वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जब मैं इन्वॉल्व हुई तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को भी अलाउ होता है करना, कि उनको ये नहीं है कि उनके कोई बैरियर नहीं है, कोई उनको घर वाला रोकता नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर नहीं बनती हैं बल्कि पॉलिटिशियन में भी जाती हैं। और ऐसा उनको भी अवेयर करने के लिए कि हम वो सिर्फ जो मीडिया बताता है हम उससे नहीं है कि हम स्कार्फ रखा हुआ है तो हम कोई जाके कोई ब्लो अप डू समथिंग ऐसा कुछ करेंगे, जबकि हम भी नॉर्मल कम्युनिटी का हिस्सा है और जितना अपना इन्वॉल्व हो सकते हैं उतना करेंगे। शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि UKIM सेंट्रल कमेटी में भी हैं और रिलीफ के हवाले से इनकी खासी कंट्रीब्यूशंस हैं। इनसे पूछेंगे आज के इस इवेंट के बारे में और UKIM के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई। यूके इस्लाम मिशन, इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में बेहद काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इस मुल्क में भी और पूरी दुनिया में मिशन का जो है रिलीफ वर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कि हम बेशुमार जो है ना लोगों की, इवन जो इमरजेंसी हो या उसके अलावा हो जिसमें ऑर्फन हैं, बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, सब की जो है हम सपोर्ट करते हैं। इमरजेंसी में ख़ासकर मिशन ने बहुत काम किया है पूरी दुनिया में। कहीं भी किसी जगह पे भी जहाँ भी कोई डिज़ास्टर हुआ है और कहीं भी कोई मसाइल हुए मुसलमानों के लिए, तो मिशन ने कि रिलीफ जो है उस वर्क ने बेहद जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। अच्छा, रिलीफ के अलावा हम देखते हैं दावा एक्टिविटीज़ भी यूके इस्लामिक मिशन का एक खासा है, तो आज का इस जो इवेंट है ये किस तरह से उन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है? आज जो है ये जो असल में ये जो आज का प्रोग्राम है, ये दावत ही है हमारी कि लोग जो हैं वो नए चेहरे इधर आएँ, लेके साथ आएँ। हमारी ब्रांचों से बेशुमार लोग यहाँ आए हैं और जिसमें कि आके उन्होंने जो है ना देखा है कि मिशन का क्या काम है। असल में ये दावई का काम है जो आज हुआ है, और ये नहीं है कि हमारी मसाजिद में जो है वो बेशुमार लोग आते हैं, और दावा का हमारा अलग नेटवर्क भी है जिसमें हम लोगों को फ्री लिटरेचर भी देते हैं, और उसके अलावा हमारा जो है वो पूरे यूके में जो है नेटवर्क इस वाले से है कि हम लोगों को पोस्ट भी करते हैं। किसी को फ्री लिटरेचर चाहिए तो यूके इस्लाम मिशन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करता है। हमारे साथ सिकंदर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, UKIM के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा सारा दिन का जो प्रोग्राम था एक अच्छा था, अब इसके बारे में इनके तासुरात जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काफ़ी पार्टिसिपेशन थी, बड़ी अच्छे स्पीकर थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्पीकरों ने, सारे गेस्ट स्पीकर थे, उन्होंने एक चीज़ जो हाईलाइट की है वो यह है कि हमने हमारी एंगेजमेंट जो है ना कम्युनिटी में वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो ना ज़ोर जो रहा है अपने मुल्कों में रहा है, हालांकि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट किए हैं जी। इसी तरह अरब लोग हैं वो फ़लस्तीन और दूसरे मुल्क में ना ये इशू हैं उनके ज़्यादा, लेकिन ये यहाँ के जो इशू हमारे दरवाज़े पे हैं उनको हमने टैकल ही नहीं किया है। तो ये बुनियादी जो हमारा अब ना जो काम है ना, यहाँ पे कम्युनिटी के साथ एंगेज होना, यहाँ पे उनको दावत देना, इस्लाम की दावत देना। इस्लाम की दावत ऐसी नहीं कि आप उन्हें किताबें पढ़ाएं, ये है कि उनके साथ
मिलें जुलें, उनको घर बुलाएं, उनके साथ मिल जाएं, उनको मस्जिद में बुलाएं। इफ्तार जो हमारे प्रोग्राम है बड़े अच्छे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में हमने उन्हें बुलाया है, उनके साथ बैठे हैं और बड़ी अप्रिसिएशन उन्होंने किया। और नाज़रीन, हमारे साथ नईम बेग साहब मौजूद हैं जो अमेरिका से आए हैं। इकना जो कि इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, उसके प्रेसिडेंट हैं। देखिए, अमेरिका के लिहाज से तो हम देखते हैं कि कम्युनिटी एक तो है कि मसाजिद के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम इंटरफेथ डायलॉग्स, इंटरफेथ डिस्कशन और ग्रुप्स, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। प्रोग्राम्स जैसे कि आवर मुस्लिम नेबर प्रोजेक्ट जो इनिशिएट हुए वहाँ पे, एंगेजमेंट जैसे न्यूयॉर्क जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पे अब ईद हॉलीडेज़ बाकायदा रिकग्नाइज़ की गई और पब्लिक स्कूल्स में ईद वाले दिन छुट्टी का ऐलान किया गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम कम्युनिटी की एंगेजमेंट की वजह से ये सारे हम स्टेप्स देख रहे हैं। देखिए, एज ए मुस्लिम मैं तो समझता हूँ कि ये हमारा दीनी फ़र्ज़ है। ये कोई अपनी ज़रूरत की वजह से नहीं हमें करना चाहिए, ये अल्लाह के हुक्म की वजह से करना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, काबिलियत दी है, तो हम हर उस फ़र्द की मदद करें जिसको ज़रूरत है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, ज्यू है। दूसरा ये है कि हमें अपने आइंदा वाली जनरेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करने। हमें ये नहीं सोचना कि हमें उनको आइसोलेट करके बचाना है सोसाइटी से, ये नहीं है, बल्कि सोसाइटी ओवरऑल को बचाना है, जिसमें गैर मुस्लिम बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो ये एक हमारी ज़रूरत है। और तीसरा ये है कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। अगर हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा, तो ये जो आज इस्लाम के नाम पे कत्ल व गारत करते हैं, उनकी बात लोग नहीं मानेंगे। तो 3 लेवल्स पे इसकी ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था यूके इस्लामिक मिशन का कन्वेंशन जो कि जारी था ओल्डहैम में और यहाँ यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में। नाज़रीन, इस इवेंट की ख़ास बात ये थी कि इसमें जिस थीम को रखा गया था वो ये था कि किस तरह से मुसलमान अब मिलकर इस कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। यूके जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसको एक अच्छी जगह रहने की कैसे बनाया जा सकता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरह से किया जा सकता है। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे, बहुत से स्पीकर्स आए थे जिन्होंने इस बारे में अपना इजहार ख्याल किया। यकीनन ये एक अच्छी काविश है और मुसलमानों को इस बात में मज़ीद आगे इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने की ज़रूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी को, एशियन कम्युनिटी को, कि किस तरह से हम मिलजुल कर इस सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। मैं हूं अहमद शाहीन, इस्लाम चैनल उर्दू की तरफ से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे आपके शहर में।